Hello students, welcome to lecture number 4, इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिक्स। इस लेक्चर में हम करेंगे सबसे पहले वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड, द फोर्थ पार्ट। वेटेड प्राइस relative method. How to find weighted price relative method? The formula is P01 is equal to sigma PW by sigma W. हम P लिखते हैं, यहाँ पर R भी लिखा जाता है। कई स्कॉलर्स, कई टीचर्स, कई ऑथर्स, कई बुक्स में P की जगह R लिखा होगा। One and the same thing. Now what is P? Where P is equal to P1 by P0 into 100 and W is equal to weights P0 into Q0। मतलब पिछले साल के एक्सपेंडिचर को, पिछले साल की वैल्यू को बेस लेना है, क्वांटिटीज को बेस नहीं लेना, वेट लेना। वेट इज द बेस ईयर एक्सपेंडिचर, और अगर क्वेश्चन में वेट्स गिवन है तो वो लेंगे। नोट, इफ इन क्वेश्चन weights are given directly, then consider that। अगर क्वेश्चन में वेट सीधे सीधे गिवन है तो हम वो कंसीडर करेंगे, नहीं तो P0 इंटू Q0 कंप्यूट करेंगे। राइट डाउन वन क्वेश्चन। Calculate the index number by weighted relative method. Commodity A, B, C, D, E, F. Quantity in 2011. Price in 2011. Price in 2019. 80, 65, 42, 37, 31, 15, 5, 8, 12, 4, 4, 2, 8, 14, 18, 5, 5, 4. Yes, this is your question. Now let's start with the solution portion. P01 is equal to sigma PW by sigma W. उसके लिए पहले मुझे चाहिए P, and what is P? P1 by P0. We have Q0, we have P1, P0, we have P1.
First we need P, and what is P? P1 by P0 into 100. 8 by 5 into 100, 14 by 8 into 100, 18 by 12 into 100, 5 by 4 into 100, 5 by 4 into 100, 4 by 2 into 100. 160, 175, 150, 125, 125, 200. So we got P. What about W? अगर क्वेश्चन में वेट सीधा गिवन है तो गुड इनफ, नहीं गिवन तो निकालेंगे P0 Q0. $80 into 5, 65 into 8, 42 into 12, 37 into 4, 31 into 4, 15 into 2, according to formula we need sigma PW by W. ये W का समेशन कर देंगे 1726, 1726, and PW that would be a quite big number. काफी बड़े नंबर्स में हम जाने लगे. $160 into 400, 64,000. 175 into 520, 91,000. 150 into 504, 75,600. 125 into 148, 18,500. 125 into 124, 15,500. 200 into 30, 6,000. समेशन 2,70,600. As per the formula, sigma PW 27600 divided by sigma W 1726. मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई बाय 100 ऑलरेडी हो चुके हैं. 156.78. Your answer is 156.78. 4 to 6 marker question, index number using weighted relative method. 1 minute, wind it up. Thirty more seconds. Wind it up the question.
अब जो हमने 4 मेथड्स किए हैं, 2 वेटेड, 2 अनवेटेड, 2 सिंपल अनवेटेड और 2 वेटेड, उसी के अंदर क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स पूछा जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फिर उसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। राइट डाउन द क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू और एक्सपेंडिचर इंडेक्स नंबर? वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या होता है और एक्सपेंडिचर इंडेक्स नंबर क्या होता है? व्हाट इज वैल्यू? टोटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर, expenditure of current year divided by expenditure of base year is called value index number. Write down. Value index number refers to the ratio of value index number refers to the ratio of expenditure on group of items in current year to the expenditure on group of same items in base year. That is V1 upon V0 into 100, which is equal to, what is V1? Expenditure P1 Q1 divided by V0 P0 Q0 into 100। खर्चा इस साल का डिवाइडेड बाय खर्चा पिछले साल का इंटू 100 इज वैल्यू इंडेक्स नंबर और एक्सपेंडिचर इंडेक्स नंबर। 30 सेकेंड्स कंप्लीटेड, देन विल मूव टू क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। फिर हम मूव करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पर। Moving to the next question. What do you mean by quantity index number? Quantity index number क्या होता है? अभी तक जो हमने किए हैं, we have done unweighted simple aggregative method, unweighted simple price relative method, weighted aggregative method under Laspere, Pasty, Fisher and weighted price relative method। और इन सब को अगर हम कंसीडर करें क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में तो क्या होगा? राइट डाउन द आंसर। राइट डाउन द आंसर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर measures the quantity index number measures the average change in quantities, prices नहीं, change in quantities, and enable us to compare and
enable us to compare changes in the physical quantity of goods produced, changes in the physical quantity of goods produced, comma, consumed or distributed. Physical quantity of goods produced, comma, consumed or distributed. Full stop. कितने गुड्स बने, कितने कंज्यूम किए गए और कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ये पता लगता है। अच्छा, आंसर तो कंप्लीट हो गया, बट आपके माइंड में ये चीज़ बिठाने के लिए अब मैं इसके फॉर्मूलेस करवा रहा हूँ। एग्जाम में सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, बट इस डेफिनेशन को समझने के लिए ये फॉर्मूले ज़रूरी है। द फर्स्ट वी हैव डन इज सिंपल aggregative method, right? What was P01? What was P01? Sigma P1 upon sigma P0 into 100. यही किया था फॉर्मूला, ये आप नोट कर लेंगे। तो Q01 क्या होगा? ये था प्राइस इंडेक्स, तो क्वांटिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा? sigma Q1 upon sigma Q0 into 100. I hope you got this. What next we have done? We have done simple unweighted price relative method. What was that? P01 is equal to sigma P upon N into 100, where P is equal to P1 by P0 into 100. ये था प्राइस इंडेक्स, तो क्वांटिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा? सिग्मा Q अपॉन N into 100, where Q is equal to Q1 upon Q0 into 100. What next? Then in third, we have done weighted aggregative method. उसके अंदर पहले हमने किया था लास्ट पेयर्स, $1000 P1 Q0 P0 Q0 into 100, यही था। तो क्वांटिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा? प्राइस को रिप्लेस करेगा Q, Q को रिप्लेस करेगा P, P will be replaced with Q and Q will be replaced with P. Q1 P0 Q0 P1 into 100. Price is replaced with quantity and quantity is replaced with price. Quantity index. Next we have done is Paasche. What was Paasche method? P1 Q1 P0 Q1 into 100, यही किया था। ये तो था प्राइस इंडेक्स, तो क्वांटिटी इंडेक्स क्या होगा? इट वुड बी P will be replaced with Q and Q will be replaced with P. Then we have is Fisher's. P1 Q0
P0 Q0, P1 Q1. Then third we have is Fisher's. What was price index? P1 Q0, P0 Q0 into 100, past में P1 Q1, P0 Q1. Price is replaced with quantity and quantity is replaced with price. अगर आप ध्यान देंगे आंसर दोनों में सेम आएगा, क्योंकि 4 इंटू 2 8 होता है, तो 2 इंटू 4 भी 8 ही होता है, आंसर सेम आता है। इसीलिए फिशर को आइडियल मेथड कहते हैं, बेस्ट मेथड कहते हैं, क्योंकि वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और प्राइस रिवर्सल टेस्ट को पास करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पास करता है, जो ऐसे कि आप देख भी सकते हैं। एंड देन फोर्थ वी हैव डन इज वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड जो हमने अभी किया, द फॉर्मूला इज सिग्मा PW by sigma W, where P is P1 by P0 into 100 and W is P0 Q0। तो यहां पे हो जाएगा सिग्मा QW by sigma W, where Q is Q1 by Q0 into 100 and W is Q0 into P0, मतलब W remains same। ये जो फर्स्ट कॉलम है ये शो कर रहा है प्राइस इंडेक्स P P P P P, और जो सेकंड कॉलम है वो शो कर रहा है क्वांटिटी इंडेक्स। सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड और क्वांटिटी रिलेटिव मेथड, लास्पेयर मेथड, पास्ट्री मेथड, फिशर मेथड, सेम आंसर आएगा। एंड देन वी हैव इज वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। कंप्लीट कीजिए, गिविंग यू 1 minute to complete the quantity index numbers। सो मैंने अभी आपको दो थ्योरी के क्वेश्चंस कराए हैं, व्हाट इज वैल्यू इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो रहता है वो रहता है लास्पेयर, पास्ट्री एंड फिशर मेथड्स के जो नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। पेज 202, Consumer Price Index, CPI। Consumer Price Index measures the changes over time in general price level of goods and services that households acquire for the purpose of consumption। Consumer Price Index के अंदर हम जो goods consider करते हैं वो consumption purpose के लिए consider करते हैं।
जैसे कि स्टील, कॉपर, गोल्ड ये नहीं होंगे। मिल्क, बिस्किट्स, क्लोथ ये कंसिडर होंगे। कंजम्पशन गुड्स, फास्ट मूविंग गुड्स कंसिडर किए जाते हैं। CPI इज कंसिडर टू बी एन इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन इन अ कंट्री। जिस कंट्री का CPI ज़्यादा होता है माना जाता है कि उस कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, क्योंकि कंज्यूमर को ही इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ता है। प्रोड्यूसर तो चीज़ें महंगी करके बेच देगा। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर और प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रहने का खर्चा, रिटेल प्राइस इंडेक्स रिटेलर्स पर जो गुड्स मिलते हैं उसका खर्चा, प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। इसके अंदर दो मेथड्स आते हैं। द फर्स्ट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, द सेकेंड इज फैमिली बजट मेथड। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, we have two methods. First is aggregate expenditure method. And the second we have is family budget method. एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला रहता है द सेम वी हैव डन इन लास्ट पेयर्स, दैट मीन्स 1000 सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 into 100 CPI। द सेम यू हैव डन इन लास्ट पेयर मेथड, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं सेम एज वी हैव डन इन लास्ट पेयर, ताकि बार बार नए नए फॉर्मूले याद करने की जरूरत ना पड़े। फैमिली बजट मेथड विल मूव इट फर्दर। पहले इसका एक क्वेश्चन करते हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन। calculate cost of living index, calculate cost of living index using aggregate expenditure method, commodity A, B, C, D, E, F, G. Prices in 2011: 10, 8, 20, 32, 15, 12, 8. Prices in 2019: 15, 12, 24, 40, 20, 18, 10. Quantity in 2011: 15, 20, 10, 5, 6, 2, 1. Cost of living index मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना है यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। सॉल्यूशन: कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब कि CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड इज सिग्मा P1 into Q0 अपॉन सिग्मा P0 into Q0 into 100। बेसिकली लास्ट पेयर मेथड लगाना है, फॉर्मूला वही है, बट जो गुड्स की सिलेक्शन है A to G वो कंज्यूमर गुड्स है। लास्ट पेयर में तो किसी भी टाइप के गुड्स हो सकते हैं। सो
P0 we have is 10, 8, 20, 32, 15, 12 and 8. P1 we have is 15, 12, 24, 40, 20, 18, 10. Q0, Q1 नहीं given. P1Q0, 15 into 15, 225, 12 into 20 to 40, 24 into 10 to 40, 40 into 5, 200, 20 into 6, 120, 18 into 2, 36, 10 into 1, 10. P0Q0, 150, 160, 200, 160, 90, 24 and 8. $1071, 792. Putting into the formula, the answer is 135.23. The answer is 135.23, correct up to 2 decimal places. 1 minute complete cost of living index, that is consumer price index, under using aggregate expenditure method. Speed up. Now moving to one theoretical question, page 215, question number 39, page 215, question number 39. Explain briefly the process of data collection for consumer price index. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसका इंटायर प्रोसेस एक्सप्लेन कीजिए. प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड एवरी मंथ टू कंप्यूट रूरल एंड अर्बन सीपीआई इन द फॉलोइंग वेज. इस तरीके से रूरल और अर्बन डेटा इकट्ठा किया जाता है. नंबर 1, फॉर रूरल सीपीआई 2 villages are selected from each district. Presently data is collected from this much villages. Number of items for price data collection is identified through market survey, which is 225. 225 items का प्राइस देखा जाता है. Price data is collected from selected shops in the villages every month by the Department of Post. Post offices हर डिस्ट्रिक्ट के 2 विलेजेस को सिलेक्ट करते हैं और 225 आइटम्स का प्राइस रिकॉर्ड करते हैं. दिस इज रूरल सीपीआई. फॉर अर्बन सीपीआई डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द सिटीज हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 9 lakhs.
सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 9 लाख से ज़्यादा है, उन सभी सिटीज़ का डेटा लिया जाता है। प्रेजेंटली टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड सिटीज़ आर 310. Number of items for price data collection is identified through market survey and it is 250. 250 आइटम्स का प्राइस लिया जाता है. Each selected market is visited every month for price data collection from the shops and outlets. 4.75 lakh price data recorded collected from rural and urban areas are uploaded per month in the web portal of National Information Center, which is the formal data collection arm of NSSO. What is NSSO? National Sample Survey Organization. और उनके पोर्टल पे ये वैल्यूज रिकॉर्ड की जाती हैं जो पब्लिक के लिए असेसेबल है, जिसे सेकेंडरी डेटा यूज किया जाता है. मीन्स हम वहां से वैल्यूज उठा के अपनी कैलकुलेशंस आगे कर सकते हैं. I hope you are clear with this. We are left with family budget method. We'll be continuing in lecture number 5. अभी के लिए आपका क्वेश्चन for homework, for practice are page 200, example 3. This is weighted price relative method. And second, page 202, example 1, consumer price index aggregative expenditure method. These two questions are homework. We'll continue consumer price index in lecture number 5 under family budget method. Then we do have some problems, issues of index number, wholesale price index, industrial index. We'll be doing in further lectures. Bye bye, take care, God bless.